So good morning बच्चों, I hope you all are well. So student, today we are going to discuss tuple operations. Last day we have created tuple and today we are going to work over there. ठीक है? So what is tuple? Simply is a kind of sequence in which all the values are stored in a sequence. So first of all, to demonstrate the tuple operation, I am just creating a tuple like TPL. In that I have stored some element in it like 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60 and 70. ओके बच्चों, ये मैंने टपल यहाँ पर क्रिएट कर दी है. अब देखिए, सबसे पहला आज का फंक्शन है लेन फंक्शन. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लेन फंक्शन? लेन फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ टपल. लेंथ ऑफ टपल मीन्स बच्चों दैट कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द टपल, लाइक TPL टपल. लेन फंक्शन के अंदर आप टपल को वेरिएबल को पास कर दें या फिर पूरी की पूरी पैरेंथेसिस के अंदर टपल पास कर सकते हैं. सो देयर आर 7 नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट. काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7. सो द आउटपुट विल बी 7. दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन बच्चों इन टपल. नाउ नेक्स्ट इज मैक्स-मिन फंक्शन. Max-min function is the function which is used to print the maximum value and minimum value from the tuple. Okay, tuple की जो maximum value है उसे print करने के लिए हमारे पास max function है और tuple की minimum value जो है उसको print करने के लिए हमारे पास min function है बच्चों. Okay, so just check it out. When I am entering max in bracket means their argument में मैंने TPL पास करा तो टपल की जो मैक्सिमम वैल्यू थी दैट इज प्रिंटिंग. एंड इफ आई राइटिंग हियर मिन फंक्शन देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ टपल इज टू बी प्रिंट. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों हमारा सम फंक्शन विच इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टपल. ओके, इट इज सम. ये देखिए बच्चों 280. व्हेन यू विल काउंट द सम ऑफ दीज ऑल वैल्यूज it will be 280. Okay, so now next is sorted function. Sorted function is used to find a particular sorted values within the tuple. Tuple की जो values है उसको sorting करने के लिए you are using sorted function. तो गौर से देखिएगा बच्चों ये किस तरह से काम करता है. Let you want to just get sorted the tuple either in ascending or descending order. So do remember, by default it is doing the list in ascending order, and if you want to just arrange the data of tuple into descending order then आप यहाँ पर कॉमा लगा के इसका एक एट्रीब्यूट सेट कर देंगे दैट इज रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. ट्रू इज अ बूलियन वैल्यू, सो यू जस्ट राइट with the capital start of T. Okay, so the tuple is automatically be reversed here. Okay बच्चों, so this is sorted function. ठीक है, मैंने ascending और descending दोनों तरह से आपको करके दे दिया. Now the very important difference between the list and tuple are to be given here. That list is modificable. Anytime the list element can be modificable. That's why it is less secure, but the tuple is more secure because the modification is not allowed. Once you have created a tuple, modification is not allowed. Okay, हाँ, if you want to delete the tuple you can, but एक सिंगल एलिमेंट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे. ठीक है, टपल को यूज़ करने के लिए यू आर यूजिंग पेरेंथेसिस मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, एंड टू मेक द लिस्ट यू आर यूजिंग एंगल ब्रैकेट. You cannot update the data in tuple, that's why it is immutable, and the list is mutable just because of you can update their data at any time. Okay बच्चों, so we have discussed two powerful data types in Python, that is list and tuple, and now one more data type is coming here, that is dictionary. What is dictionary? Simply बच्चों, dictionary is a key value pair data type in which you have a specific key of the data and correspondingly you have their data. डू रिमेंबर, यहाँ पर जो कीज़ होती हैं वो यूज़र डिफाइंड होती हैं. जैसे लिस्ट और टपल में आप इंडेक्स नंबर आप खुद दे रहे थे, आप खुद नहीं दे रहे थे बच्चों, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे थे. लिस्ट में भी इंडेक्स नंबर ऑटो जनरेट थे, टपल में भी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 ऑटो जनरेट थे. लेकिन हमारी जो डिक्शनरी होती है बच्चों, यहाँ पे जो
इंडेक्स वैल्यूज़ है वो नहीं होती हैं। यहाँ पर की और पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसमें से कीज़ के थ्रू हम अपने डेटा को इटरेट करते हैं या असेस करते हैं डिक्शनरी के। और ये जो कीज़ होती हैं ये यूज़र डिफाइंड होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हाउ वी कैन मेक द डिक्शनरी। सो फॉर दैट बच्चों, आई एम यूजिंग अ वेरिएबल dict1. dict1 इज़ द डिक्शनरी. टू मेक द डिक्शनरी यू नीड टू यूज़ कर्ली ब्रेसेस. ओके, लिस्ट के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, डिक्शनरी के लिए किसका यूज़ करते हैं, आपका कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, तो देखिए डिक्शनरी 1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने सबसे पहले की लिखी है, देन उसका वैल्यू पेयर लिखा, देन सेपरेटेड बाय कॉमा की लिखी, देन कोलन लगा के वैल्यू पेयर, देन अगेन कॉमा लगा के की लिखी है, देन ये इसका वैल्यू पेयर। यानी आप देख रहे होंगे 1:10 मीन्स 1 इज़ द की, 10 इज़ दियर वैल्यू, 2 इज़ द की, 20 इज़ द वैल्यू, 3 इज़ द की, 30 इज़ द वैल्यू। तो इस तरह से आपकी ये एक डिक्शनरी बन गई। इफ़ यू आर जस्ट प्रिंटिंग योर dict1 लाइक दिस, then the complete dictionary will print. And if you want to just print the dict1 whose 2 नंबर की, अब देखो बच्चों यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं होती जो आप 0 से काउंट करेंगे। ओके, यहाँ तो डिक्शनरी प्रिंट होती है अकॉर्डिंग टू दियर की वैल्यू। तो यहाँ पे की है 2, अगर आपको 2 जो की है उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा को प्रिंट करना है तो आप इस तरह से उसके अंदर dict1 के स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की वैल्यू दे देंगे। जैसे ही आप उसकी की वाली वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो वैल्यू पेयर है, पेयर कैसे बना हुआ है ये देखिए, ये पूरा पेयर बना हुआ है जिसमें स्टार्ट ये इस तरह से होता है बच्चों, इस पहले तो की लिखी जाती है फिर उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पेयर होता है। तो हम कीज़ के थ्रू उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ओके, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बच्चों की जो है वो न्यूमेरिक ही हो, आप अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हो और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी डाल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ मोस्ट पावरफुल डेटा टाइप थ्रू विच यू कैन अरेंज योर डेटा इन यूज़र डिफाइंड कीज़। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ट्राई इट एट योर होम।